इक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। अब तो जाए चढ़े सिंहासन मिले हैं सारंग पानी। राम कबीरा एक भय हैं कोई न सके पछानी। ਭਾਰਤੀ ਭਗਤ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਕਬੀਰ ਦਾ ਆਗਮਨ ਇੱਕ ਅਦੁੱਤਾ ਆਗਮਨ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਭਗਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਚੋਂ ਸਿਰਮੌਰ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੈ। ਡਿੰਬ ਪਖੰਡ ਦਾ ਆਪ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਧਰਮ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਆਪ ਨੇ ਸੱਚ ਦਸੀ, ਦਇਆ ਦਸੀ, ਸੰਤੋਖ ਦਸੀ। ਜੇਠ ਦੀ ਪੂਰਨਮਾਸੀ ਬਿਕਮੇ ਸੰਮਤ 1455 ਵਿੱਚ ਕਬੀਰ ਦਾ ਜਨਮ ਬਨਾਰਸ ਵਿੱਚ ਨੀਮੂ ਨੀਰਾ ਜੁਲਾਹੇ ਦੇ ਘਰ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਮਜ਼ਹਬ ਤੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ, ਪਰ ਕਬੀਰ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਤੋਂ ਬਾਲਾਤਰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਐਸਾ ਆਖਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਨਾ ਹਮ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਲ ਹੈ ਰਾਮ ਕੇ ਪਿੰਡ ਪਰਾਂ। ਰਾਮ ਆਖਣ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮੁਸਲਿਮ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਰਜ ਦਾ ਚਾਨਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਰਬ ਸਾਂਝੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਨੇ। ਆਮ ਅਵਤਾਰੀ ਤੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਦਾ ਵੀ ਜਨਮ ਕਾਲ ਬੜੇ ਰਹੱਸਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਹੱਸਦੇ ਹੋਏ ਜਗਤ ਦੇ ਚਾਹੇ, ਜਦ ਕਿ ਜਗਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਬਾਲਕ ਅਕਸਰ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਆਉਂਦੇ हैं ਔਰ ਅੰਤ ਵੀ ਅਕਸਰ ਰੋਂਦੇ ਹੋਇਆ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਚਾਨ ਹੈ, ਹੱਸਦਾ ਹੋਇਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹੱਸਦਾ ਹੋਇਆ ਜੀਵਦਾ ਹੈ, ਹੱਸਦਾ ਹੋਇਆ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਾਸੇ ਵੰਡਣੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੰਡਣੀਆਂ, ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਵੰਡਣਾ, ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲਕਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੀਮੂ ਨੀਰਾ ਅਧਕੜ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਇਸ ਅਦੁੱਤੀ ਸੰਤਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਫੁੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸਮਾਉਂਦੇ। ਬਚਪਨ ਕਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪ ਅਗੰਮੀ ਗੱਲਾਂ ਹਰ ਮਹਿਫਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ ਪਰ ਗੱਲ ਆਗਮ ਨਿਗਮ ਦੀ ਕਰਨੀ, ਖੇਡਣ ਲਈ ਬੈਠਣਾ ਪਰ ਗੱਲ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਰਨੀ, ਰਾਮ ਦੀ ਕਰਨੀ। ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀਆਂ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਖੇਡ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਦੇਣੀ, ਇਹ ਕਬੀਰ ਦਾ ਰੋਜ਼ਮर्रा ਦਾ ਕਰਮ ਸੀ। ਵਿਦਿਅਕ ਮੰਦਰਾਂ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰ ਆਪ ਲਈ ਬੰਦ ਸਨ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਆਪ ਜੁਲਾਹੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਰਣ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪ ਸ਼ੂਦਰ ਸਨ ਤੇ ਸ਼ੂਦਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਅਖਤਿਆਰ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਾ ਉਹ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਧਰਮ ਮੰਦਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੂਜਾ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵਿਕਾਸ ਵਿਦਿਅਕ ਮੰਦਰਾਂ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੌਧਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿਦਿਅਕ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਲਈ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਦੁਆਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵਿਕਾਸ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹੋਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਪੁਰਸ਼ ਆਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਦੋਵੇਂ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰ ਆਪ ਲਈ ਬੰਦ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪ ਨੇ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਮੰਦਰ ਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰ ਆਪਣੇ ਰਾਹੀਂ ਖੋਲੇ। ਜਗਤ ਨੂੰ ਚਾਨਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਗਤ ਨੂੰ ਚਾਨਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਧਰਮ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਇਹ ਮਨੋਤ ਸੀ ਕਿ ਆਲਮ ਫਾਜ਼ਲ ਭਗਤ ਸੰਤ ਜਨ ਕੇਵਲ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਮਿੱਥ ਜੁੜ ਗਈਆਂ। ਜੈਸੇ ਕਿ ਇੱਕ ਕੁਆਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਦੇ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਬਾਲਕ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਤੱਟ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਨੀਮਾ
ते नीरू जुलाहा चुक के ले आए। ये एक मिथ है, जबकि हकीकत है कि नीमू ते नीरा दे घर बकायदा कबीर दा जन्म होया है। कबीर ने अपनी जात छुपाई नहीं। कबीर मेरी जात को सब कोई हंसने हार, बलहारी इस जात को जै जप्यो सिरजनहार। की जात है जात जुलाहा, मत का धीर, सहज सहज गुण रवे कबीर। गल स्पष्ट कर दी, जात दा मैं जुलाहा, वर्ण करके मैं शूद्र हाँ। इसलिए मैं जगत दे सामने वो विचारां रखदा कि मनुख नाल ना कोई वर्ण जोड़िया जाए, मनुख नाल ना कोई जात जोड़ी जाए। गर्भवास में कुल नहीं जाती, ब्रह्म बिंदे ते सब उत्पाती। ये कबीर दे बोल ने। जात दा जन्म शरीर दे जन्म दे नाल है, वर्ण दा जन्म शरीर दे जन्म दे नाल है। ते कबीर कहंदे मैं इस शरीर तो पहले भी सी। जद मैं पहले भी सी ते इस वर्ण दा, इस जात दा मेरे नाल जोड़ना एक बच्चियां दी खेल है। लेकिन बड़े बड़े आलम विद्वान भी कई दफा इस तरह की बच्चियां दी खेल करते हैं। सारी मनुखता नूं साडे देश दे मुखी लोगां ने 4 हिस्सियां दे वंड के रखिया होया सी, जिस तो कबीर बिल्कुल इनकारी होए। इस वंड नूं मनण तो आपने बिल्कुल इनकार कर दिता। आपने स्पष्ट रूप दे कह दिता, जे तू ब्राह्मण ब्राह्मणी जाया तो आन बाट काहे नहीं आया। तुम कत ब्राह्मण हम कत सूद, हम कत लोहू तुम कत दूध। मेरे शरीर नूं कोई चीरे ते लहू निकलदा है, पर ऐ ब्राह्मण तेरे शरीर नूं कोई चीरे ते दुध थोड़ी निकलदा है, उस दे विच भी ते लहू ही निकलदा है। मेरे शरीर दे अंदर हड्ड मांस मिंज और दुर्गंधी इत्यादि है, तेरे शरीर दे विच भी ते यही कुछ है। शरीरक तल ते अपने ब्राह्मण होने का सबूत दे कि तेरे ते मेरे च फर्क की है। फर्क होंदा है मन विच, फर्क होंदा है विचारां विच, फर्क होंदा है सोचने विच। और मेरे विचारां विच परमात्मा है, मेरे विचारां विच सच है, मेरे विचारां विच ईश्वर है, मेरी सोच मंडल विच परमात्मा है। इस वास्ते मैं ते उसनूं ब्राह्मण मनदा। कहो कबीर जो ब्रह्म विचारे, सो ब्राह्मण कहियत है हमारे। शरीर दे तल ते ना कोई नीवा है ना कोई उच्चा है। विचार दे तल ते मनुख नीवा है, मनुख उच्चा है। हकीकत है जिस दे विचार नीवे ने वो नीवा है, जिस दे विचार उच्चे ने वो उच्चा है। तो कबीर कहंदे मेरे विचार ब्रह्म जैसे ने, पर अक्सर मनुख की दृष्टि शरीर ते ही रुकदी है। कैसी एक अगम्मी गाथा है साडे देश विच प्रचलित कि ऋषि अष्टावकर जो अपने शरीर विच 8 बल रखते सन, लत्तां टेढ़ियां, बावां टेढ़ी, गर्दन टेढ़ी, गर्म जो है लक टेढ़ा, गरस के सारा शरीर 8 बलों विच बकायदा विंगा होया होया। कहंदे ने जनक दी सभा विच जद आप दा अचानक आना होया, क्योंकि आप दे पिता राजगुरु सन ते किसी कारण करके आप पिता नूं ही बुलाण वास्ते आए। ते शरीर दे ये 8 बल वेख के जनक दी सभा विच बैठे हुए ब्राह्मण हस पए। और हसी दे च मखौल सी, हसी दे च तनस सी, हसी दे च निंदा सी, हसी दे च चोट सी। चोट करनी होवे किसे ते मनुख रो के भी चोट कर सकदा है, हस के भी चोट कर सकदा है। चोट करनी होवे किसे ते मनुख ने तां ओ अपमान करके भी चोट कर सकदा है, सन्मान दे के भी चोट कर सकदा है। चोट करनी होवे किसे ते हकीकत है किसे दी इज्जत करके भी चोट की जा सकती है, बेइज्जती करके भी चोट की जा सकती है। किसे दा देना भी दरअसल खोना होंदा है ते कई दफा किसे दा खोना भी वास्तविक देना होंदा है। इस हंसी दे बहुत गहरी चोट सी अष्टावकर नूं लगी। आपने सुते सिदकिया राजन, अज पता चलिया तेरी महफिल दे चमार बैठे ने। मैं ते समझिया सी ब्राह्मण होणगे, अज पता चलिया तू शूदरां विच घिरिया होया है। महापुरुष की दृष्टि च शूदर ओ जिस दे विचार नीवें ने, तू ते शूदरां विच घिरिया होया है। इहदे सब चमार बैठे ने।
जनक ने आख्या ऋषि जी चमार कैसे? तो आपने कहा इन्होंने मेरी चमड़ी वेखी है, इन्होंने मेरा शरीर वेख्या है। ते चमार वह है जिसकी दृष्टि चमड़े ते, जिसकी दृष्टि शरीर ते, जिसकी दृष्टि मन ते है वो मनोविज्ञानी है, जिसकी दृष्टि आत्मा ते वो संत है, भगत है, गुरमुख है। इन्हां दी दृष्टि मेरे शरीर ते है, ये चमार ने, ये मेरे मन तक भी नहीं पहुंचे। इन्हों विद्वान मन्ना तो मैं किस तरह मना, इन्हों दार्शनिक विचारक मैं मन्ना तो किस तरह मना। इन्हां दी तय कुछ भी नहीं है, इन्हां दी दृष्टि बहुत थोथी है और उपरली है। और अपने विचारां दे राही एहसास करा दिता जनक नूं, भावें मेरे शरीर विच 8 बल ने पर मेरे मन विच एक बल भी नहीं। भावें इन्हां ब्राह्मणां दे शरीर विच कोई बल नहीं पर इन्हां दे मन विच लखां ही बल ने, लखां ही विंग ने, लखां ही टेढ़ापन है। तो हकीकत है भगत कबीर जी का ऐसा कहना, जे तू ब्राह्मण ब्राह्मणी जाया तो आन बाट का है नहीं आया। भी जिस ढंग नाल जगत ते मैं आया ऐ ब्राह्मण तेरा भी आउण दा ढंग होई है। मां बाप दे जरिए मैं आया, मां बाप दे जरिए तू आया, मेरे शरीर विच लहू है, तेरे शरीर विच भी लहू है, कोई दुध नहीं है। फिर तू ब्राह्मण कैसा ते मैं शूद्र कैसा। हकीकत है कि कहो कबीर जो ब्रह्म विचारे, सो ब्राह्मण कहियत है हमारे। जुलाहे दे घर जन्म लैके ते इतनियां फिलसफे पूरत गल्लां करनियां, ब्रह्म दी विचार देनी, दरअसल ये अखौती हंकारी ब्राह्मणां नूं चंगा ना लगे। ऐसा दौर चलिया बनारस दे विच, आप दे उत्ते तरह तरह के इल्जाम लगे और ये इल्जाम प्रथम ब्राह्मणां की तरफों लगे, फिर मौलवियां की तरफों लगे। ये पहला ऐसा पुरुष बनारस का जिहदे नाल ये दोवें फिरकियां दे मुखी सहमत ना होए। उसका एक कारण, जद मौलवी ने कहा नीरू जुलाहे नूं कि पुत्र तेरा हुण 9 साल का हो गया है, लिहाजा इसकी सुन्नत कराओ और ये बकायदा शरा दा धार नहीं होवे। कहंदे ने मां बाप राजी होए भी ठीक है। और इस्लामी जगत दे विच सुन्नत एक बहुत खुशी का दिन गिणिया जाता है। मिठाई वंडी जाती है, मेहमानां नूं भोज खाना खिलाया जाता है, आओ भगत की जाती है और ये बालक अज तो शरा दे विच प्रवृत्त होया, इस गल की बहुत वड्डी खुशी मनाई जाती है। लेकिन कबीर ने सुन्नत कराण तो इनकार किया ते आप दे ए महाबोल गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे इस ढंग नाल दर्ज ने कि सुन्नत करे जे तुर्क होएगा, मैं ना बदूंगा भाई, जोरे खुदाए मुको तुर्क करेगा, आपन ही कट जाए। सख्त सने कर तुर्क होएगा। हकीकत जे सख्त छुरी दे नाल, इंद्री कटण नाल जे कोई वाकई मुसलमान हो जाता है ते ऐसा अगर रब चाहता सी तो रब स्वयं कट देंदा, परमात्मा ही सुन्नत कर देंदा। सुन्नत करे जे तुर्क होएगा, औरत का क्या करिए, अर्ध शरीरी नार न छोड़े, तांते हिंदू ही रहिए। बड़ी कीमती गल कबीर कह गए ने, अगर पुरुष की सुन्नत करोगे तो स्त्री का की करोगे। तो स्त्री ते आखिर हिंदू ही रही, अद्धा शरीर मुस्लिम अद्धा हिंदू। कबीर ने सुन्नत कराण तो इनकार किया और आख्या कि शरीर के सारे अंग परिपूर्ण परमात्मा की तरफों संपूर्ण ने ते मैं किसी भी अंग नूं घटाण नूं राजी नहीं। लेकिन आपने इस रस्म नूं भी मनण तो इनकार किया कि 9 साल के बालक नूं जद यज्ञोपवीत कराया जाता है तां आप इस संबंध विच भी कहंदे ने, हम गर सूत तने नित ताना, कंठ जनेऊ तुम्हारे, तुम तो पढ़ते वेद गायत्री, गोबिंद हृदय हमारे। भी जिहड़ा सूत्र तू वट पा के गल विच पा देना ते कहंदा जनेऊ है, ये सूत साडे घर विच कतिया जांदा है, साडे घर विच बनाया जांदा है, असीं बनांदे हां। हम गर सूत तने नित ताना,
ਕੰਠ ਜਨੇਊ ਤੁਮਾਰੇ, ਵੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸੂਤਰ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੰਠ ਦੇ ਚ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਦ ਕਿ ਬਣਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ। ਇਸ ਸੂਤ ਨੂੰ ਕੱਤਦੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ। ਤੁਮ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਤੇ ਵੇਦ ਗਾਇਤਰੀ, ਗੋਬਿੰਦ ਹਿਰਦੇ ਹਮਾਰੇ। ਜਿਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਗਾਇਤਰੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਗੋਬਿੰਦ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੋ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁਖੀ, ਅਖੌਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁਖੀ ਕਬੀਰ ਦੇ ਮੁਖਾਲਫ ਹੋਏ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੋਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਈ ਦਫਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਉਹ ਵੀ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਨੇ ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਸਈਏ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਕਬੀਰ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਬਨਾਰਸ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੀ ਝੁੱਗੀ ਜਲ ਗਈ, ਖੱਡੀ ਜਲ ਗਈ, ਬੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕੱਪੜਾ ਜਲ ਗਿਆ, ਔਰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦੇ ਵਕਤ ਕਬੀਰ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਗਈ। ਕਬੀਰ ਗੰਗਾ ਦੇ ਤੱਟ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਆਪ ਦਾ ਲੜਕਾ ਕਮਾਲ, ਜੋ ਵਾਕਈ ਕਮਾਲ ਸੀ। ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਵਿੱਚ ਕਮਾਲ ਦਿਖਾਣਾ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਕਮਾਲ ਸੀ। ਉਹ ਭੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਗਿਆ ਗੰਗਾ ਦੇ ਤੱਟ ਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਬਾਪੂ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਝੁੱਗੀ ਜਲ ਗਈ ਹੈ, ਖੱਡੀ ਜਲ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਜਲ ਕੇ ਰਾਖ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਜਲਾ ਕੇ ਖਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਕਿਸੇ ਮੌਜ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਕਿਸੇ ਅਗੰਮੀ ਰਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਆਪਨੇ ਫੌਰਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਰਾਮ ਜਪਤ ਤਨ ਜਰ ਕੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਚਿਤ ਰਹਿਓ ਸਮਾਏ। ਐ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ, ਜਿਸ ਮਸਤੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲੀਨ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਤਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਅੱਗ ਲਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੈਠਾ, ਇਸ ਮੌਜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੈਠਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੜ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਫਿਰ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਐਸਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਗ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਹੈ, ਇਹ ਪਵਨ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਹੈ। ਆਪੇ ਪਾਵਕ ਆਪੇ ਪਵਨਾ, ਜਾਰੇ ਖਸਮ ਤਰਾਖੇ ਕਵਨਾ। ਜ਼ਰਰੇ ਜ਼ਰਰੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਣਾ, ਇਹੀ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕਰਤੱਵ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੋ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਲਿਆਈ, ਔਰ ਇਹ ਮੁਖਾਲਫਤ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਤੱਤ ਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦਾ ਵੀ ਧਾਰਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਨ ਕੇ ਹਾਥੀ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਬਨ ਕੇ, ਮੁਸ਼ਕਾਂ ਬਨ ਕੇ। ਇੱਕ ਐਸਾ ਹਾਥੀ ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਮਹਾਵਤ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਇਸ ਹਾਥੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰੋਂਦ ਕੇ, ਲਿਤਾੜ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਕਮਾਲ ਦਾ ਉਹ ਹਾਥੀ, ਉਸਨੇ ਸੂੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਕਬੀਰ ਆਪ ਇਸ ਵਾਰਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਕਲਮਬੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਸਤ ਨ ਤੋਰੇ ਧਰੇ ਧਿਆਨ, ਵਾਕੇ ਹਿਰਦੇ ਬਸੇ ਭਗਵਾਨ। ਹਾਥੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਲਿਤਾੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਕੁੰਚਰ ਪੋਟ ਲੈ ਲੈ ਨਮਸਕਾਰੇ, ਬੂਝੀ ਕਾਜੀ ਨੈ ਅੰਧਾਰੇ। ਵੀ ਉਹ ਤੇ ਮੇਰੀ ਉਸ ਪੋਟਲੀ ਨੂੰ ਜੋ ਮੁਸ਼ਕਾ ਬਨ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ, ਕੁੰਚਰ ਪੋਟ ਲੈ ਲੈ ਨਮਸਕਾਰੇ। ਆਮ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਐਸਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਗਊ, ਹਾਥੀ, ਹੰਸ, ਮੋਰ, ਕੁੱਤਾ ਔਰ ਘੋੜਾ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਚ ਦਾ ਮਾਦਾ ਉਤਪੰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਤਪੰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਸਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਘੋੜੇ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹਾਥੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਸੋਚ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਪਸ਼ੂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੇ। ਹਾਥੀ ਵੀ ਉਸੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਾਥੀ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ
जो गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज ने बार बार अपनी बाणी दे दोहराया है कि जिस वक्त वो पानी पीण लई एक सरोवर विच गया तो एक मगरमच्छ ने हाथी नूं पकड़ लिया। वो पैर मूंह विच पा के गहरे पानी विच घसीट के लै जा रहा है ते पानी विच मगरमच्छ की ताकत बहुत ज्यादा होंदी है। उस वक्त पीड़ित हाथी ने एक कमल का फुल तोड़ के परमात्मा नूं पेश किया, जिसका जिक्र गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज इंज करते हैं। जब ही सरन गही किरपा निध गज गराते छूटा, महिमा नाम कहां लो बरनो, राम कहत बंधन ते टूटा। इहदा मतलब है हाथी भी राम कह सकता है। इहदा मतलब है कि हाथी भी राम बारे सोच सकता है, हाथी भी ईश्वर का चिंतन कर सकता है। और गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज विच एक थां ते नहीं अनेकां थावां ते ये उदाहरण आया है। भाई गुरदास जी ने भी इसका जिक्र किया है। दुखत गजिंद अरबिंद गए भेट राखे, ताके काजे चक्र पाण आण ग्रसे ग्राह जी। भाई साहब कहते दुखत अवस्था दे हाथी ने कमल का फुल प्रभु नूं भेंट किया, अरदास की, हे प्रभु मेरी रखिया कर। अति विपता दे फसे हुए कई दफा पशु भी गैबी शक्ति नूं पुकारदे ने, क्योंकि उन्हां कोल उस गैबी शक्ति तो इलावा होर कोई आसरा नहीं रहिंदा, होर कोई सहारा नहीं रहिंदा। अगर हाथी ऐसा सोच सकता है तो हाथी फिर मनुख दे बहुत नेड़े है। ते कबीर ने जो अपनी बाणी दे ये वार्ता कलमबंद की है, ते कबीर नूं होया कोई बहुत लंबा अरसा नहीं होया, 600 साल का समा बतीत होया है जद कि घटना घटी है। कुंचर पोट लै लै नमस्कारे, बूझी काजी न अंधेयारे। कबीर कहते कमाल दी गल, हाथी दी अखां खुलियां ने, वो मेरी असलीयत वेख रहा है, पर काजी नूं ते सिकंदर लोधी नूं असलीयत नहीं दिखाई देती। औखा हो गया सिकंदर लोधी भी हाथी ने तोड़िया नहीं, हाथी ने कुचलिया नहीं, हाथी ने कबीर नूं खत्म नहीं किया। तो एहलकारां नूं कहा चुक के गंगा ही सुट दो। गंगा अपने जोबन ते चढ़ी हुई सी, भादरों दा महीना सी, अथाह पानी वग रहा सी। आखिर कबीर नूं चुक के गंगा दे गहरे प्रवाह दे सुट दिता गया। आप दे उत्थे भी बहुत सुंदर बोल ने जो गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे दर्ज ने। गंगा की लहर मेरी टूटी जंजीर, मृग छाला पर बैठे कबीर। जिहड़ियां लहरां बंदे नूं डोब के रख देंदियां ने, उन्हां लहरां ने कबीर दियां जंजीरां ही तोड़ दित्तियां। इसनूं एक उर्दू दा शायर इंज कहंदा है, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा कब बुझे जिसे रोशन खुदा करे। हवा ही जिस दीवे दी हिफाजत करे, उस दीवे नूं कौन बुझाएगा। लहरां ही जिस मनुख नूं पारले कंडे ते लै जान, किनारे ते लाण, उस बंदे नूं डोबना बड़ा औखा है। दुख ही जिस बंदे नूं ज्ञान दे जान, शिक्षा दे जान और भव सागर तो पार होने की प्रेरणा दे जान, ऐसे बंदे नूं दुखी करना बहुत औखा है। ऐसे बंदे नूं पीड़ित करना बहुत औखा है। सियाणा बंदा ते जिंदगी दे हर दुख तो नवा अनुभव लैंदा है, नवी प्रेरणा लैंदा है, नवी शिक्षा लैंदा है, नवी दीक्षा लैंदा है। तो आप कहंदे ने गंगा की लहर मेरी टूटी जंजीर, मृग छाला पर बैठे कबीर। और आप साफ कहंदे ने मन न डरे तन काहे को डिगाए, चरण कमल चित रहो समाए। मन प्रभु दे चरण नाल ऐसा जुड़िया है कि जद मन डरदा ही नहीं ते ऐ सिकंदर शरीर दे भावें तू टुकड़े टुकड़े कर दे, शरीर दे भावें तू पुरजे पुरजे कर दे। ऐ सिकंदर लोधी मैं शरीर दे तल तो उच्चा जी रहा, शरीर नूं भावें तू डोब दे, शरीर नूं भावें तू कट दे, शरीर नूं भावें तू छलनी कर दे, शरीर दे भावें तू पुरजे पुरजे कर दे, मेरा मन डरदा ही नहीं। वाकई वड्डे वड्डे कम संसार विच उन्हां मनुखां ने कीते ने जो शरीर दे तल तो थोड़ा जिहा उच्चा जीवदे ने, जो शरीर दे मोह विच, शरीर दी पकड़ विच जीवदे ने। खिमा करनी ओ मनुख कदी भी संसार विच कोई खास कम, महान कम नहीं कर सके और हमेशा ही जिंदगी की दौड़ विच पछड़े जो है रह जाते हैं। तो भगत कबीर हर फिरके नूं, हर तबके नूं सच दा उपदेश, सच दा संदेश देंदे आया अपनी जिंदगी बतीत कर रहे हैं। बिरध हो गए,
बुढ़ापा हो गया ते आपने बनारस छड्डण दा फैसला कीता। सगल जन्म शिवपुरी बिताया, मरती बार मगहर उठदाया। आप स्वयं कहते ने कि मेरा अंतिम समा जद आया तो मैं मगहर चला गया। क्यों? जो तन काशी तजे कबीरा, रमैये कहाँ न हो रहा। फिर राम दा की एहसान कि मैं बनारस दे प्राण त्याग के शिवां दी पुरी चला जावां, मोक्ष नूं प्राप्त करां, ते मेरी बंदगी दा की लाभ, मेरे कीते हुए जप तप दा की लाभ। इस वास्ते आप अपनी पत्नी नूं मुखातब करदे होए कहंदे ने, कहत कबीर सुनोरी लोई, परम न भूलो कोई, क्या काशी क्या ओकर मगहर, राम हृदय जो होई। चाहे बनारस होवे ते चाहे मगहर धरती होवे, राम नाम दे लीन जिहड़ा पुरुष है, चाहे बनारस दे समा जाए ते चाहे मगहर दे समा जाए, वो वास्तविक मोक्ष गति नूं प्राप्त हुंदा है, क्योंकि उहदे हिरदे विच राम दा वासा है, उसदे हिरदे विच ईश्वर दा वासा है। अस्थान भेद उस लई कोई मैने नहीं रखदा, कोई अहमियत नहीं रखदा। इस तरह दे भरम वहम तो कबीर ने मनुखता नूं उच्चा कीता। हर विशेष व्यक्ति दा कुछ धार्मिक जीवन हुंदा है, कुछ समाजिक जीवन हुंदा है और कुछ राजनीतिक। इतिहास दे विच ये तिन्ने पक्ष भगत कबीर दे मिलदे ने। धार्मिक तौर ते सिरमौर मनुख उसदे बाकी दे जीवन दे पहलू बेदाग रहिंदे ने। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦਾਗੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਮਾਜਿਕ ਤਲ ਤੇ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਲ ਤੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਧਾਰਮਿਕ ਉੱਚਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਅਤਿਅੰਤ ਪਵਿੱਤਰ, ਮਹਾਨ। ਔਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਔਰ ਨਿਰਮਲਤਾ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ। ਆਪ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਦੀ ਪਤਨੀ ਆਗਿਆਕਾਰ ਹੈ ਔਰ ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤਿਅੰਤ ਮਹਾਨ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਇਹ ਖੂਬੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਸ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜੋ ਹੈ ਰੱਖਣੀ। ਕਬੀਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂ ਬੇਦਾਗ ਨੇ, ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਦੀ ਆਪ ਮੂਰਤੀ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਈਰਖਾਲੂਆਂ ਨੇ ਆਪ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ, ਆਪ ਦੀ ਹੇਠੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ऐसे पत्थर भेज देते कि आने वाली पूर्णमाशी के दिन कबीर दे घर ब्रह्म भोज होगा। कबीर ने एक एक मोर सोने की दक्षिणा भी देनी है और वस्त्र भी देने ने। लोड़वंद साधु संत होर कबीर दे घर मेले के रूप में जमा होए, पर देवनेत ऐसे लोग भी आए जिन्हों ने उस दिन ब्रह्म भोज का सारा निजाम खुद चलाया, सारा इंतजाम खुद किया, जो कबीर की आर्थिक समर्था तो परे की गल सी। ते जद चारों पासे धन कबीर दी गुंजारा उठियां तां आपने आख्या, ना हम किया ना करेंगे, ना कर सके शरीर, क्या जानो किछ हर किया, भयो कबीर कबीर। एक दिन सिकंदर लोधी दी बेगम गंगा दे तट ते हिंदू यात्रुओं नूं वेखण लई आई। बस्तर बड़े कीमती पहने हुए, हीरे मोतियां नाल जड़त उसदा बुरका और तरह तरह दे जरी दे नाल सिले हुए उसदा पहरावा ते बस्तर। कबीर दे चेले, कबीर दे शिष्य वेख के दंग रह गए। कबीर जी दे डेरे विच एक पनहारी सी जो सारा दिन आए गए यात्रुओं नूं जल पिलांदी सी। बड़ी शरधा दे नाल पानी पिलांदियां पिलांदियां सतनाम सतनाम दा ओ रटन करदी रहिंदी सी। कबीर पंथियां दा गुरमंत्र सतनाम है। पानी पिलांदियां पिलांदियां लोकां दे कन्नां विच ओ रब दी बाणी भी पाई जांदी सी। ये इस तरह दी पनहारी, ये इस तरह दा पानी पिलाण वाली मूंह दे राहीं पानी पिलाई जांदी सी, कन्नां दे राहीं बाणी पिलाई जांदी सी। लेकिन उसदे तन दे बस्तर फटे और वो लावारिस मुफलिस सी। कबीर दे चेले
कबीर जी पास आके गिला करते ने, भगत जी ऐ जो पनहारी है सारा दिन सतनाम दा रटन करदी है, लोगों की शरीरक प्यास बुझाती है ते लोगों नूं मानसिक शांति मिल सके, सतनाम की धुनी उन्हां दे कन्नां विच पांदी है, लेकिन अत्यंत मुफलिस है, गरीब है, तन दे वस्त्र भी फटे हुए ने। लेकिन सिकंदर लोधी की बेगम नूं असीं अज देखिया है गंगा के तट पे, उन्हें मखमली लिबास पहने है और हीरे मोती पन्नियां नाल जड़त। क्या ये रब अन्याय नहीं करता कि रब का चिंतन करने वाले दुखी ते रब तो बेमुख होके इस तरह की ऐश्वर जिंदगी बतीत करते हैं। कबीर ने उत्थे जड़े बोल अपने उच्चारण किए ने जो बकायदा गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे दर्ज ने। कबीर हैंगे बाहन सघन घन, छत्रपति की नार, तासो पटंतर ना पुजे, हर जन की पनेहार। ये ठीक है कि सिकंदर लोधी की बेगम ने बड़े कीमती वस्त्र पहने ने और वो हीरे मोतियां नाल जड़त ने, लेकिन वो वस्त्र इस पनहारी का मुकाबला नहीं कर सकते जो हरि दे जना नूं पानी पिलांदी है, सारा दिन सेवा करदी है संत जना दी। इहदे कपड़े महान ने, सिकंदर लोधी दी बेगम दे कपड़े तुच्छ ने। चेले कहंदे ने इसने ते खद्दर दे कपड़े पहने ने, वो भी फटे हुए, ते उस बेगम ने मखमल दा लिबास पहने हैं, वो भी हीरे मोतियां नाल जड़त, ते आप उस वस्त्रां नूं तुच्छ कहंदे हो, इसनूं महान कहंदे हो। तो कबीर कहंदे मेरे कोल कारण जानो, मैं ऐसा क्यों आखे। कबीर निरपनारी क्यों निंदिए, क्यों हर चेरी को मांग, ओ मांग सवारे विखे को, ए सिमरे हरि नाम। इस दे फटे पुराने कपड़े प्रभु दे चिंतन विच इसनूं लीन रखदे ने, निरंकार दे च इसनूं लीन रखदे ने, जबकि उसका मखमली लिबास उन्होंने संसार विच लीन रखता है। तो मैं ते उस वेशभूषा की ही उपमा करांगा जिहड़ी वेशभूषा मनुख नूं निरंकार विच लीन करे। गुरु नानक देव जी महाराज का भी ऐसा कहना है, बाबा होर पैनण खुशी खुआर, जित पै दे तन पीड़िए, मन में चले विकार। ओ पैनना जिहदे च बंदा संसार विच ही गर्क हो जाए ते संसार दीयां नज़रां दा ही एक पात्र बन के रह जाए। साहब कहते हैं ऐसा ते मन विच खुआरी नूं जन्म देंदा है, तन विच रोगां नूं जन्म देंदा है। अज तक ते वैद और हिकमत ये कहंदी आई है कि आहारक रोग होंदे ने, विवहारिक रोग होंदे ने, कर्म रोग होंदे ने। प्रथम रोग हो जो खाण पीण दी बदपरेजी नाल पैदा होंदे ने, पर गुरु नानक देव जी महाराज दा कहना है बदपरेजी सिर्फ खाण पीण दी नहीं आउंदी, बदपरेजी पहनण दी भी होंदी है। इसका भी मन दे उत्ते अपना प्रभाव है और मन की चंचलता जिन्हां पहरावियां नाल वधे, मन की चंचलता शरीर के तल ते रोगां नूं जन्म देवेगी, बीमारियां नूं जन्म देवेगी। इस वास्ते आपने बुलंद बांग आख्या है, बाबा होर पैनण खुशी खुआर, जित पै दे तन पीड़िए, मन में चले विकार। कबीर निरपनारी क्यों निंदिए, क्यों हर चेरी को मान, ओ मांग सवारे विखे को, ओ सिमरे हरि नाम। कबीर दी बाणी विच धार्मिक उपदेश बड़े फिलसफाना ढंग दे नाल दर्ज है। आप दे सलोक ने, छंद ने, शब्द ने, हर राग दे च ने। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे च भगत बाणी दे च सब तो ज्यादा बाणी भगत कबीर दी है, और जिथे जिथे भी भगत बाणी गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे च आरंभ होंदी है, करीबन करीबन सब तो प्रथम श्री कबीर जी महाराज दे ही शब्द आउंदे ने, और आप दे शब्दां ने जिंदगी दे हर पहलू दे उत्ते बड़े सोहणे ढंग नाल रोशनी पाई है। आध्यात्मिक चिंतन ते धार्मिक मूल ज्ञान आप एक श्लोक दे च बड़े सोहणे ढंग नाल देंदे ने। कबीर ऐसा कोई न जन्मे हो, अपने घर लावे आग, पांचों लड़का जार के, रहे राम लिव लाग। कबीर जी का ऐसा कहना कि चूंकि असी दो शरीर रखते हैं, एक स्थूल एक सूक्ष्म, एक जो दिखाई देता है एक अदृश्य। ये जिहड़ा शरीर दिखाई देता है इसनूं आख्या जाता है प्रगट चित्र, ते जिहड़ा शरीर नहीं दिखाई देता
उसनूं आख्या जांदा चित्र गुपत, गुपत चित्र, ਉਹ चित्र जो नहीं दिखाई देंदा। बंदा दूसरे दा तन वेख सकदा है, बंदा दूसरे दा मन नहीं वेख सकदा, लेकिन मन दी अपनी होंद है और किसी हद तक देखा जाए तो तन दी बुनियाद है। ते मनुख दा असली स्वरूप जो है उस दे विचार ने, उसका मन है, पर यह इन्हां अखां नाल नहीं दिखाई देंदा। ते हर वक्त इस तरह के दो रूप मनुख दे अक्सर बने रहंदे ने। कई दफा तन दे तल दे उत्ते मनुख शरीफ प्रगट होंदा है, लेकिन मन दे तल ते वो शरीफ नहीं होंदा। कई दफा तन दे तल दे उत्ते बहुत भोला दिखाई देंदा है, लेकिन मन दे तल दे उत्ते वो बहुत चलाक होंदा है ते चलाकियां नहीं दिखाई देंदियां। कई दफा तन दे तल दे उत्ते बहुत वड्डा दानी दिखाई देंदा है, पर मन दे तल दे उत्ते बहुत बेईमान होंदा है। कई दफा तन दे तल दे उत्ते बहुत सियाणा दिखाई देंदा है, पर मन दे तल दे उत्ते अक्सर देखा जाता है वो मूर्ख होंदा है, कुबड़ होंदा है। और ऐसा देखा गया प्रगट चित्र ते चित्र गुपत दा आपस दे तालमेल नहीं बैठता। प्रगट चित्र कुछ होर दिशा की तरफ गमन करता है ते चित्र गुपत किसी होर दिशा की तरफ। धर्म की साधना दरअसल चित्र गुपत नूं सुंदर बनाउण लई है, लेकिन मनुख की सारी साधना प्रगट चित्र नूं सुंदर बनाउण लई है। शीशे दे अगों घंटा घंटा खड़िया है, अपना रंग रूप सवार रहा है। और अज दे समय च जितने सौंदर्य प्रसाधन बाजार विच आए ने और चारों पासे फैक्ट्रियां बना रही ने, इस तरह का कोई साधन, इस तरह के कोई उपराले नहीं किए जा रहे कि किसी तरीके नाल मनुख दा मन सुंदर दिखाई दे, मनुख दा चित्र गुपत सुंदर होवे, खूबसूरत होवे। तन की खूबसूरती ते सारा जोर है, मन की खूबसूरती दिते बिल्कुल जोर नहीं। इस वास्ते संसार विच देखण विच आ रहा है तन सुंदर होंदे जा रहे ने, मन करूप होंदे जा। तन की शोभा वधदी जा रही है, मन की शोभा घटती जा रही है। तन प्रभावित करन लग पे ने, मन का कुछ भी प्रभाव नहीं रह गया। जबकि मन वास्तविक हकीकी मूल शरीर है, ये चित्र गुपत है। जब अंतिम समय इस प्रगट चित्र नूं जला दिता जाता है या दफन कर दिता जाता है, तो फिर रह जाता है चित्र गुपत मन, संस्कारां दा मुजस्समा। ये फिर अगे जाता है और ये जिस तरह का होंदा है उस तरह का अगे इसनूं शरीर मिल जाता है। संसार तन की सुंदरता दे ते तन नूं सवारण दे अपना समा खर्च करता है। भगत मन नूं सवारण दे समा ते मेहनत जुटांदे ने। बाबा फरीद दा कहना है, आप सवारे मैं मिले, मैं मिलिया सुख होए फरीदा, जे तू मेरा होए रहे सब जग तेरा होए। जे तू तन सवारे ते संसार नूं चंगा लगदा है, पर जे तू अपना मन सवारे तो निरंकार नूं चंगा लगेगा, निरंकार तेरे नाल प्यार पावेगा। तन दे खूबसूरत लोग बाहर महफिलां दे सन्मान पांदे ने, पर मन दा खूबसूरत मनुख प्रभु दी दरगाह दे मान मर्यादा पाउंदा है, सन्मान पाउंदा है। इस वास्ते साहिब भी कहते हैं, एह मन सुंदर आपना हर नाम मजीठे रंगरी। दरअसल मूल मन है, ये चित्रगुप्त है। तन दी अपनी औलाद है, मन दी अपनी औलाद है। तन दी औलाद इहदी कोई पूर्ण तौर पर गिणती नहीं है। किसी का एक बच्चा हो सकता है, किसी के दो हो सकते हैं, किसी के 5 हो सकते हैं, किसी के 10-12 भी हो सकते हैं। लेकिन मन की औलाद गिणी मिथी है। मन की औलाद ते 5 पुत्र ही ने और ये 5 दे 5 भैड़े। शरीरक औलाद उहदे च कोई एक भी संतान भैड़ी निकला है, चाहे लड़का चाहे लड़की, तो वह कुल नूं कलंकित कर देंदी है, घर नूं नरक बना देंदी है। ते मन की ये जिहड़ी 5 औलाद ने, 5 संतानां ने, ये ते 5 ही भैड़ियां ने। इस वास्ते मन कलंकित है, मन दुखी है, मन बेजार है। अक्सर भैड़ी औलाद दा रोना रोंदे हुए लोग मिलणगे, कह देंदे ने पुत्र ना ही जमदा ते ठीक सी, ये धी ना ही पैदा होंदी ते ठीक सी। इन्हें ते कलंक ला दिता है, इन्हें ते चारों पासे साडा अपजस वधा दिता है। पर नेक पुत्र कुल दा कलंक धो देना हुंदा है। गुरु अर्जन देव जी महाराज दा ऐसा फरमान, अपजसन मिटंत सत पुत्रे,
सिमर तब हृदय गुर मंत्रणे गाथा मल्ला पंजवा। साहिब कहते अपजस मिट जाता है अगर घर दे कोई सतवादी पुत्र पैदा हो जाए, घर दे कोई शराफत का मुजस्मा पैदा हो जाए, हसमुख खुशपोश खुश मिजाज खुश इखलाक बच्चा घर की रौनक होंदा है, घर का अपजस मिटा देंदा है, घर के कलंक नूं धो देंदा है। लेकिन ऐसी एक संतान भी भैड़ी होवे तो घर नूं सारे परिवार नूं कलंकित करके रख देंदी है। मन की ये जिहड़ी औलाद है ये पंज ने ते पंजां दे बकायदा नाम ने, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। ये मन चो पैदा होंदे ने, तन दे तल ते प्रगट होंदे ने। इन्हां दी उत्पत्ति मन तो है, मन तो ही लोभ पैदा होंदा है, मन तो ही हंकार पैदा होंदा है, मन तो ही मोह पैदा होंदा है, मन तो ही काम पैदा होंदा है। दरअसल काम एक विचार है, हंकार एक फुरना है, लोभ एक विचार है ते मन विचारां नूं जन्म देंदा है, मन फुरनियां नूं जन्म देंदा है। ते मन दे फुरनियां दे है कि सारा दिन ये जिहड़े फुरने चलदे ने मनुख दे मन दे च, मन दे फुरनियां दे है कि काम या क्रोध होवेगा या लोभ होवेगा या मोह होवेगा या अहंकार होवेगा, इस तो इलावा और कुछ नहीं है। दिन भर मनुख दी मानसिक चितवनी जिहड़ी है, मानसिक चिंतन जिहड़ा है ओहदे च ये पंज पुत्र ने। जैसे आम है बंदा बार बार दूर जाके प्रदेश जाके अपने बच्चों नूं याद करता रहिंदा है, अपनी औलाद नूं याद करता रहिंदा है, बस मन भी अपने इन्हां पंजां जणे होया पुत्रियां नूं ही याद करता रहिंदा है और उसकी चितवनी विच रहिंदा है। धार्मिक साधना जिहड़ी है वह इस ते खड़ी है। भगत कबीर जी महाराज के कथन अनुसार, कबीर ऐसा कोई न जन्मियो अपने घर लावे आग। हुण ऐसा केड़ा माई का लाल जमे है जो अपने घर नूं आप अग लावे। अज तक ऐसा होया है कि मनुख दूजियां दे घर नूं अग ला के खुश होंदा रहा है, पर कबीर कहंदे ने भगत दी सोचनी ते दृष्टि कुछ होर है। ये ते अपने घर नूं ही अग ला के खुश होंदा है। ते अपना घर केड़ा है, तृष्णा छान भरी धर ऊपर दुरमत भांडा फूटा। मन जिस झुग्गी दे च रहिंदा है वो तृष्णा दी झुग्गी है ते ओहदे च दुरमत भैड़ी मत दा एक घड़ा पिया भांडा पिया ते जिहदे च गंदा पानी मन पींदा रहिंदा है। कबीर कहंदे ने ऐसा हुण केड़ा माई का लाल है जिहड़ा इस तृष्णा दी झुग्गी नूं अग लावे, झोंपड़ी नूं अग लावे। जिस घर दे च मन रहिंदा है इनू अग लावे। ते मन सूक्ष्म है, मन अदृश्य है, तो ये अग्नि भी अदृश्य है जिहदे नाल मन दे घर नूं साड़ना है ते मन दे पुत्रां नूं साड़ना है। सिर्फ घर नूं ही नहीं साड़ना, औलाद नूं भी साड़ना है। कबीर ऐसा कोई न जन्मियो अपने घर लावे आग, पांचों लड़का जार के रहे राम लेवला। पंजां ही पुत्रां नूं साड़ के राम दी धुनी दे च लीन रवे। ऐसा केड़ा माई का लाल। तो एक ते प्रगट अग्नि है जिहड़ी बाहर साड़दी है, बाहर जलाण दे काम आंदी है। मनुख जद ईर्षा नाल भरदा है, मनुख जद दुश्मनी दे नाल भरदा है, मनुख जद बदले दी भावना नाल भरदा है ते दूजे नूं साड़न दा चित करदा है। पर जद मनुख दया नाल भरदा है, जद मनुख संतोख नाल भरदा है, जद मनुख ज्ञान नाल भरदा है, जद मनुख विचार नाल भरदा है ते ओहदा चित करदा है हुण अपने उस घर नूं साड़ां जिहदे च मन रहिंदा है, उस औलाद नूं साड़ां जिसने बेचैन कर रखा है, परेशान कर रखा है। एक अग लगेगी बाहर ओ बदले दी भावना वस होके, अहंकार वस होके, पर एक अग पैदा होगी दया वस होके, संतोख वस होके। उस अग्नि नूं गुरबाणी ने ब्रह्म अगन आख्या। कबीर ने भी उसनूं ब्रह्म अग्नि आख्या। ब्रह्म अगन सहजे पर जाली एके चोट सिधाया। ब्रह्म अग्नि मेरे अंदर पैदा हो गई है। ते ब्रह्म अग्नि किवें पैदा होवे? बाहर जिहड़ी अग है वो माचिस दी तीली असीं रगड़दे पैदा होंदी है। प्राचीन समय च दो पत्थरां नूं रगड़ के अग पैदा की जाती सी, या दो लकड़ां नूं रगड़ के भी प्राचीन समय च अगन पैदा की जाती सी। ये जिहड़ी ब्रह्म अगन है ये किस तरह पैदा होवे, इस दे बारे धार्मिक जगत दे जिहड़े शब्द प्रचलित ने जप तप, तप
ਤਪਸ਼, ਤਪ ਅਗਨੀ। ਕਿਸ ਦੀ ਅਗਨੀ? ਜਪ ਦੀ ਅਗਨੀ, ਜਪ ਦੀ ਤਪਸ਼, ਜਪ ਦਾ ਸੇਕ, ਜਪ ਦੀ ਅੱਗ। ਜਦ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਐਸਾ ਜਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਰਾਮ ਰਾਮ ਦੀ ਧੁਨੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਦਰਅਸਲ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਛੂਹਣਾ ਹੈ। ਜਦ ਕੋਈ ਐਸਾ ਰਟਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਅਗਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਅਗਨੀ। ਇਹਨੂੰ ਯੋਗੀਆਂ ਨੇ ਯੋਗਾ ਅਗਨ ਵੀ ਆਖਿਆ। ਇਹ ਜਪ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਪ ਤਪ ਇਕੱਠਾ ਸ਼ਬਦ ਬਣ ਗਿਆ। ਤਪ ਸੋਜ਼, ਤਪ ਸੇਕ, ਤਪ ਅਗਨੀ। ਪਰ ਕਿਸ ਦੀ ਅਗਨੀ? ਜਪ ਦੀ ਅਗਨੀ। ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਜਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਪ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਪਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਅਗਨ ਠੰਡੀ ਅਗਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾੜਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਕਿਸ ਨੂੰ ਸਾੜਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਭ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਮ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਦੀ ਕੋਈ ਅਗਨ ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਸਾੜਦੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਬਾਹਰ ਦੀ ਅਗਨ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਾਮ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੰਜੇ ਪੁੱਤਰ ਪੰਜੇ ਵਿਕਾਰ ਸੜ ਸਕਦੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਤੇ ਪੰਜਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਜਪ ਦੀ ਅਗਨ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੋ ਕਬੀਰ ਅਧਿਆਤਮਕ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਮਾਈ ਕਾ ਲਾਲ ਜਮਿਆ ਜੋ ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਵੇ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਝੁੱਗੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਵੇ ਜਪ ਦੀ ਅਗਨ ਨਾਲ। ਕਬੀਰ ਐਸਾ ਕੋਈ ਨ ਜਨਮਿਓ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਾਵੇ ਆਗ, ਪਾਂਚੋਂ ਲੜਕਾ ਜਾਰ ਕੇ ਰਹੇ ਰਾਮ ਲਿਵਲਾਰ। ਇਹ ਭੈੜੀ ਸੰਤਾਨ, ਇਹ ਭੈੜੀ ਔਲਾਦ ਜੋ ਮਨ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਆਹ ਕਰਕੇ ਤੇ ਰਾਮ ਦੀ ਧੁਨੀ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਰਵੇ। ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਮਾਈ ਕਾ ਲਾਲ ਹੈ? ਐਸਾ ਕੌਣ ਹੈ ਜੋ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ? ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੰਦੇਸ਼ ਆਪ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਆਪ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਐਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜ਼ਾਤ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਨਾ ਕੋਈ ਨੀਵਾਂ, ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੀਵਾਂ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਅਗਿਆਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਤੁੱਛ ਹੈ। ਔਰ ਧਨ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਧਨਵਾਨ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਧਨਵਾਨ ਹੈ। ਆਪਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਨਿਰਧਨ ਹੈ ਸੋਈ, ਜਾਂ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਨਾਮ ਨਾ ਹੋਈ। ਵਾਸਤਵਿਕ ਮਨੁੱਖ, ਗਿਆਨੀ ਮਨੁੱਖ ਨਾਮ ਰਸੀਏ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਪਰਮ ਧਨ ਹੈ, ਤੇ ਅਗਿਆਨੀ ਮਨੁੱਖ ਕੇਵਲ ਧਨਵਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਸਨਮਾਨ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਅਸਥੂਲ ਧਨ ਹੈ। ਐਸਾ ਅਸੀਂ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਸੰਗ स्वयं भगत कबीर ने लिखे है। द्वापर युग दे अवतारी पुरुष श्री कृष्ण दुर्योधन दा घर छड़ के रात बिदर दे घर रहे। दुर्योधन धनवान है, बिदर निर्धन है। दुर्योधन राजा है, बिदर मुफलिस है। दुर्योधन कोल महल माड़ियां ने, बिदर कोल एक निक्की झोगी है। दुर्योधन दे घर 36 प्रकार दे पदार्थ सवेरे शाम बनते ने। बिदर रुखी मिसी खा के गुजारा करता है। राग रंग दियां महफिलां दुर्योधन दे घर सजदियां ने, जबकि प्रभु नाम दा चिंतन बिदर दे घर हुंदा है। जद दुर्योधन दे घर नूं छड़ के रात कट्टी बिदर दे घर, दुर्योधन दे अहलकार कृष्ण नूं कहंदे आखिर तूं ग्वाले दा ग्वाला ही रहा। ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਧਨਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਨਵਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਿੱਤਰਤਾ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਸਾ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਰਿਹਾ। ਨਾਮ ਧਨ ਦੀ ਦੌਲਤ ਨਾਲ ਬਿਦਰ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਹੈ। ਨਾਮ ਧਨ ਦੀ ਦੌਲਤ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਹਿਰਦਾ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਧਨਵਾਨ ਧਨਵਾਨ ਦੇ ਘਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਮੀਰ अमीर दे घर आया है। तेरे घर ये सब कुछ नहीं सी। इस प्रसंग नूं कबीर ने अपनी बाणी च इंज कलम बंद कीता है, राजन
कौन तुम्हारे आवे, ऐसो भाव बिदर को देखो, ओहे गरीब मोए भावे। हस्ती देख भरम ते भूला, श्री भगवान न जानिया, तुमरो दूध बिदर को पानो, अमृत कर मैं मानिया। खीर समान साग में पाया, गुण गावत रैन बिहानी। ऐ दुर्योधन, जे तेरे घर मैं रात कटदा ते झूठे राग रंग दियां महफिलां ही तू मेरे अगों सजाणियां सन, पर बिदर दे घर रात बड़ी सोहनी लंघी है। सारी रात प्रभु दे गीत गांदियां लंघ गई। बिदर ते मैं सारी रात प्रभु दा चिंतन करदे रहे, प्रभु दा कीर्तन करदे रहे, ते प्रभु दे कीर्तन ने, प्रभु दे गुणां ने अलूणे साग नूं भी खीर ते होर अमृत दे च बदल के रख दिता, 36 प्रकार दे भोजन दे च बदल के रख दिता। जद के तेरे घर दी वासना ते तृष्णा ने 36 प्रकार दे भोजन नूं भी जहर बना देना सी। खीर समान साग में पाया, गुण गावत रहन बयानी। कबीर को ठाकर आनंद बिनोदी, जात ना काहू की मानी। कबीर कहंदे ने ठाकुर परम पुरखां दी दृष्टि दे च जात बेमैनी आउंदी है। हैरानगी दी गल है कि शूदरां लई धार्मिक मंदिरां दे दरवाजे बंद, पर शूदर भिलनी दे बेर श्री राम झूठे खांदे ने, झूठे बेर वो छकदे ने, वो शूदर है। शूदरां लई धार्मिक मंदिरां दे दरवाजे बंद, पर बिदर दे घर बकायदा श्री कृष्ण चले जांदे ने और बाल्मीक दा वो सन्मान करदे ने। रे चित चेत चेत अचेत काहे ना, बाल्मीक के देख। इस तरह का उपदेश संदेश गुरुदेव की बाणी दे चों जो है मिलता है। भगत श्री कबीर ऐसे समय च होए ने, आप दियां लहरां दे नाल होर अनेकां भगत उठे। रविदास, नामदेव, सदना, सैन, भीखन, आप दे विचारां दा चारों पासे प्रभाव पिया। अज भी कोई दार्शनिक गल जोड़नी होवे ते कबीर नूं अगे करना पैंदा है। आप दे कहण दा ढंग ऐसा है, किधरे आप हास रस दे च कहंदे ने, किधरे आप रोदर रस दे च कहंदे ने, किधरे आप शांत रस दे च कहंदे ने, किधरे आप बीर रस दे च भी कहंदे ने। आप दे बीर रस दे भी बचन ने, सूरा सो पहचानिए, जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे, कबू न छाड़े खेत। ये बोल भगत कबीर दे ने, गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे दर्ज ने। बई वो सूरमा है जो लड़े दीन के हेत, दीन गरीब, जो गरीब दी खातर लड़ता है, कमजोर दी खातर लड़ता है। सूरमा उसनूं मनांगे जिहदी सारी ताकत कमजोर नूं बलवान करन दे च खर्च हो जाए, मुफलिस नूं अमीर बनाने दे च खर्च हो जाए। सूरा सो पहचानिए, जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे, कबू न छाड़े खेत। गगन दमामा बाज्यो, पर्यो निशाने घाव, खेत जो मांडियो सूरमा, अब जू जन को धाव। गगन गगन मंडल दे च, दिमाग दे च, मन दे च विचारां उत्पन्न होईयां ने, ख्याल उत्पन्न होए ने। ते ख्याल केड़े उत्पन्न होए ने? दीन दी बांह पकड़नी है, कमजोर दी बांह पकड़नी है। इस तरह के आदर्शवादी उपदेश कबीर ने वंडदे आया अपना जीवन बतीत किया, जगत का जीवन सफल किया।